So once again, I'm welcoming you in the class of IT. So we have started our session 5, which is entitled by the create forms and reports. So far we have discussed how we can create a form and how we can change it, how we can design it. Now some other aspect of the creating the forms. So let's discuss. The first topic is that partial deletion of records, how we can delete a records using the forms. It's simple to understand. If we delete any records from the form, then it will be deleted from that table also, but then we can also manipulate the table. Okay, understanding my point? If you are deleting any data, if you are deleting any tuples or information using the form, so it will be deleted by partially only. Okay, तो यानी कि ये केवल अपने को एक इंटरफेस देता है, आप डिलीट तो कर लेंगे, बट अगर आपको वापस उसको ऐड करना है, ठीक है, जो कंसर्न आप लोग मेरे से पूछेंगे कि सर अगर मुझे वापस से ऐड करना है तो क्या करना होगा, तो आप फॉर्म के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं, एज वेल एज आप टेबल के डिजाइन व्यू, विजार्ड व्यू, जिस भी व्यू में आपको जाना है उसको ओपन करते हुए आप नए रिकॉर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसीलिए इसको पार्शियल डिलीशन बोला गया है, यानी कि जो फॉर्म्स के थ्रू आप डिलीशन करोगे वो पार्शियल होता है, परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, परमानेंट डिलीशन के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, टेबल के अंदर जाते हैं, फिर आपको मैंने बताया रखा है, राइट क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं। ठीक है, so to partially delete record from the table using a form, follow the given steps. So what are these steps? Choose the record to delete by clicking on the next or previous button. As I have shown you that that narrow kind of bar है ना, जो अपने स्क्रीन के एकदम लोअर साइड में थी, तो उसी के अंदर आपको डिलीट बटन मिल जाएगा। डिलीट ऑल द फील्ड्स वैल्यूज एज विजिबल अबव, सेव द फॉर्म एंड क्लोज द फॉर्म। ये मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके कैसे डिलीट कर सकते हैं पार्शियली। फिर मॉडिफाइंग फॉर्म, ये देखिए जो अपने ये जो डिस्कस किया था ना, यही वाला है वापस से। तो मॉडिफाइंग फॉर्म का मीनिंग क्या है कि इफ यू आर वर्किंग विद द फॉर्म, सो यू हैव टू फर्स्ट सेलेक्ट द फॉर्म, then right click on it, the context menu will appear, and then if you will choose that edit button, if you will choose that edit option, then you can edit your form according to you. I have shown you the practical implementation, right? So this is the same which we had discussed in the practical. So some of the following steps are as follows. How we can modify our form using design toolbar and using form element also. So the very first step is that from the form design toolbar. So choose the select tool, click on the form element. We want to select the form element, will get selected, and we may stretch or shrink or enlarge the form element. I have shown you. If you want to enlarge it, if you want to shrink it, if you want to change the location of your forms element, then what you need to do is you have to just simply click on it. Then this square will appear on that, around that element, and then by just holding them, and you can enlarge them, shrink them, or change the position of that. Okay, so this is the from the design toolbar. Now right click on any form element, click on control from context menu. The window opens up using which we can change the parameters for that form control. I have shown this thing also. देखिए दो तरीके अपने को फॉर्म को एडिट करने के। एक तो अपने ने क्या किया कि उसको एलिमेंट को सेलेक्ट किया और उसके बाद अपने आप पोजीशनिंग कर रहे हैं यूजिंग द माउस ओनली। एंड दूसरा क्या है कि अपने जो एलिमेंट्स अपने फॉर्म में बनाया है उसको सेलेक्ट करिए, फिर अपने क्या करेंगे, उसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद किस ऑप्शन पे जाएंगे, कंट्रोल ऑप्शन पे। कंट्रोल ऑप्शन के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्प्ले हो जाएगी और इसको अकॉर्डिंगली अपने चेंज कर सकते हैं। देखिए वापस से मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो इसलिए पूछेंगे। ठीक है, चलिए इसको फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। So I am double clicking on this open office, clicking on this database. Now I have two options as usual, create a new database or open an existing database. As usual, I am doing the existing database file. I am opening the students database, finishing it. Now you can see tables, queries, forms and reports. Now forms, this is our form number 1, LPS students, student record and etc. So here I am opening, let's say LPS students, right clicking on it, edit button. Now you can see. Okay, so as we haven't created any data into it, so let me select. This also is not, is empty form one. Okay, this is our form. So if I will click on this label, then ये स्क्वायर आ जाएंगे। इफ आई विल क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स तो भी ये स्क्वायर आ जाएंगे, है ना। तो जैसे कि मैं पहला मेथड बता देता हूँ, स्क्वायर को क्या करूंगा मैं, जस्ट श्रिंक कर सकता हूँ, पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है,
बहुत ही सिंपल सी बात है, इंटरेक्टिव है ये। और अगर मान लीजिए मुझे इसका प्रॉपर्टी चेंज करनी है, मैंने इसको क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फिर मैं किस पे जाऊंगा, कंट्रोल पे। कंट्रोल पे जाते देखिए मुझे यहाँ पर बहुत सारे जो है प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर भी अपने क्या कर रहे थे, इसको देखिए, अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो इसकी हाइट एंड विड्थ जो भी है वो मैनिपुलेट होगी। इसको अपन ने क्या किया, माउस की हेल्प से किया। बट यहाँ पर अपने इसको एज अ फील्ड प्रॉपर्टी के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। नेम, लेवल फील्ड, एनेबल्ड, विजिबल, रीड ओनली, क्या आपने कोई केवल इसको रीड ओनली करना है, या इसको इंटरैक्टिव बनाना है। इंटरैक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या मुझे डेटा एंट्री करवानी है या नहीं करवानी है, ठीक है। फिर टैब्स कितने देने हैं, एंकरिंग कैसे करनी है, एंकरिंग दैट मींस उसकी पोजीशन कैसे करनी है। फिर एक्स पोजीशन वाई, विड्थ, हाइट। तो जितने भी अपन ने देखे थे प्रॉपर्टीज, अपन इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सा है, बॉर्डर कलर क्या देना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर आप मतलब बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत हल्का सा आप डिफरेंस देखेंगे बॉर्डर में, बहुत हल्का सा। एज मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, अदरवाइज आप लोगों को नहीं पता चलेगा इसका बॉर्डर कलर। तो यहाँ से आप जितनी भी प्रॉपर्टीज है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक किसी को दिक्कत है? So now we will understand how we can change the label in the form. As we have seen in the practical implementation, how we can change the label. Okay, I have shown you the properties window. I have shown you how you can shrink using the mouse. So to change the label, follow the given steps. Choose the select tool from form design toolbar, obviously. Choose the form element whose label we want to modify. We have to choose the form na, first of all. And then right click on the selected form element. Choose ungroup from context menu. This separates the label from the text box. Okay, so this is a very interesting thing. Once you will right click on the selected form element, choose ungroup. Ungroup पे आपको select करना पड़ेगा students, ठीक है। अनग्रुप में जब अपने सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो लेबल होगा और जो फॉर्म का एलिमेंट होगा वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी वो एम्बेडेड है, ठीक है। सो राइट क्लिक ऑन द लेबल एंड चूज कंट्रोल फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। फिर से वो ये प्रॉपर्टीज विंडो आ जाएगी बहुत सारी, ठीक है, जहां पर आप उसका लेबल का फील्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर आप जो भी लेबल आप चेंज करना चाहते हो, उसके साइज को, उसके लेबल के वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू दिस इजीली। ओके, चलिए इसको भी करके देख ही लेते हैं फिर प्रैक्टिकल फटाफट से। राइट क्लिक, एडिट, मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए इस पे राइट क्लिक किया, ग्रुप के अंदर गया, ग्रुप के अंदर मैं क्या कर दूंगा, अनग्रुप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनग्रुप करने से क्या होता है कि आपका जो लेबल है वो चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने लेबल को ही उड़ा दिया है, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ठीक है। एडिट भी कर सकते हैं आप ग्रुप को। ये देखिए यहाँ पर एडिट करेंगे जब अपने ग्रुप को, तो देखिए अब मेरे पास क्या एक्सेस आ चुका है, लेबल का एक्सेस आ चुका है, ठीक है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, कंट्रोल पे जाऊंगा। यहाँ पर जो भी मेरे को इसकी कंट्रोलिंग में दिक्कत है, यानी कि जैसे कि नेम इसका चेंज करना है, लेबल का क्लास चेंज करनी है, तो आई कैन चेंज इट। सो दिस इज हाउ यू कैन अनग्रुप इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बॉक्स। Now we will discuss how we can change the background of the form. Okay, once again it's very interesting thing how we can change the background of it. So to change the background of the form, there are two basic methods, very easy. Method one is that right click on an empty area of the form. What? On an empty area of the form and choose page option from context menu. A page style default dialog box opens, ठीक है। क्या होगा कि अगर आप जैसे कि फॉर्म है ना, फॉर्म उसके आपके जो भी एम्प्टी एरिया होगा उस पर आपको क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करेंगे, फिर से वो छोटे से मेन्यू खुलेगी, उस छोटे से मेन्यू को अपने क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पर जैसे ही अपने क्लिक करेंगे तो वहां पर अपने को पेज ऑप्शन दिखाई देगा। पेज ऑप्शन पे अपने को क्या करना होगा, पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे और वहां पर मतलब एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर मेथड टू क्या है, मेथड टू थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अपने को दोनों मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। सो चूज फॉर्मेट मेन्यू, फिर अपने किस पे जाएंगे, पेज ऑप्शन पे जाएंगे ऑब्वियसली। फिर द सेम डायलॉग बॉक्स, वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो अपन ने इस वाले मेथड में यूज किया हुआ होगा, ठीक है। फिर वहां से वी में नाउ मॉडिफाई द फॉर्म बैकग्राउंड फ्रॉम द दिस डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक ऑन द बैकग्राउंड मेन्यू फ्रॉम द डायलॉग बॉक्स टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। सो क्लिक ऑन द बैकग्राउंड कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन, choose desired color we want to apply in the form and click on OK button. The selected color will appear in the form.
So this is how you can select or and just change the background color. Once again, I'm showing you the practical implementation. But edit में ही खुलना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, ये empty area है. अब मुझे किस पे क्लिक करना पड़ेगा? पेज ऑप्शन पे. ठीक है, ये आ गया अपना बैकग्राउंड कलर. यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कलरिंग काफी है. चलिए इसको इस पे सेलेक्ट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो गया. फिर दूसरा क्या था? फॉर्मेट. फॉर्मेट पे अपने को किस पे जाना था? पेज पे. पेज पे मैं गया, यहाँ पर मैंने मतलब कलर को सेलेक्ट किया, ओके किया, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया. ठीक है, दोनों तरीकों से मैंने आपको ये फॉर्म का कलर चेंज करना बता दिया. ठीक है, सो नाउ यू कैन Now we will understand inserting and deleting records using form view. How we can insert record and how we can delete the records. I have shown you once again. Okay. So if we have to insert a row in the underlying table without giving an empty area for any field, we must create the form by selecting all the fields of the table. That means whatever the fields we are going to take in our form, so we have to take it as a data entry option also. So we can enter the data also. Okay. So after the form is formed, we may enter new entries to new rows. Okay. So similarly, going to a row of the table and clicking on delete row will delete the row from the underlying table. This is the option which I am talking about. This is the option. Okay. Here you can see records. Record 1, 2, 3, 4, whatever the records are. It depends on your number of tuples. By just clicking on this option, you can insert new data. By clicking on this option, you can delete the records from your form. Okay, so this is the steps you can use. If you will click on this delete option, command prompt नहीं, एक छोटी सी prompt message आएगा जहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि if you will click on yes, then the data will be deleted, otherwise no. So this is how you can understand this. देखिए वापस से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे आराम से इसको क्लिक किया मैंने, एडिट पे गया. ठीक है, एडिट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे. लेट मी सेलेक्ट इट इन अ नॉर्मल व्यू. ओके, हियर इट इज इन अ नॉर्मल व्यू ओनली. नाउ यू कैन सी रिकॉर्ड 1 of 7. ठीक है, रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, अलग अलग रिकॉर्ड्स. नाउ इफ आई वांट टू ऐड वन मोर रिकॉर्ड, ऐड वन मोर tuple, so I will click on this button. Okay, here I can type. Let's say I'm typing Sunil, a very intelligent boy. Tab score, he has scored 89. Fees 10,000. Okay, then एंटर कर दिया, एक नया रिकॉर्ड बन गया. अब देखिए जो रिकॉर्ड 7 थे, अब यहाँ पर 8 आ चुके हैं. अब मान लीजिए मुझे इसको डिलीट करना है सुनील से को. ठीक है, सुनील को ही मुझे डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा? आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले एक्सेस कर सकते हैं. Okay, it is saying that I can't insert that new record because I have implemented the primary key constraint. ID मैंने बना रखी, इसलिए मैं इसको डिलीट करना पड़ेगा मेरे को. ठीक है, तो यहीं पर मैं इसको ओके करके इसको एंड करूंगा आज का सेशन, क्योंकि ID मैंने क्या बना रखी है? प्राइमरी की. और प्राइमरी की के कारण मुझे केवल टेबल के अंदर, डिजाइन व्यू के अंदर ही जाके डेटा एंट्री करने का ऑप्शन देगा. ठीक है, सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और अपने फॉर्म का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में अपने रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे. एक दिन की क्लास में रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो हमारी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो चलिए